Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Let's start our math class with the chapter number 3 and the exercise 3.1 with the question number 6. In the question number 6, yesterday we have already done the part A and part B. Now come to the part C. In part C, the figure shown is with the 5 sides, and the figure shown with the 5 sides is known as pentagon. So that means we have to calculate the angle x for the given pentagon. Firstly, अगर हम पेंटागन की बात करें, इसके हमें इंटीरियर वाले सारे एंगल्स नहीं पता. हमें एक तो ये एंगल नहीं पता, एक ये एंगल नहीं पता, राइट? सो जब भी हम फिगर ड्रॉ करेंगे उसको यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2 खुद से राइट कर देंगे. आफ्टर दैट राइट सॉल्यूशन. एंगल 1 एंड एंगल 70 क्या बना रहे हैं? अगर हमारे पास एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स ऐसे बन रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180. एंड लीनियर पेयर में अगर हमें एक एंगल पता हो, दूसरा कैसे कैलकुलेट करते हैं? 180 में से माइनस करके. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री. सिमिलरली एंगल 2 एंड 60 डिग्री भी तो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. सो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? पूरे 180 में से अगर हम 60 माइनस कर दे तो 2 ही तो रह जाएगा. सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. Right? Now come to the sum of the angles of pentagon. So sum of all angles of pentagon, that is equal to n minus 2 into 180 degree. Sum of all angles कर देते हैं सर. 30 डिग्री. दूसरा एंगल 1 हमारे पास क्या आया था? 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 2 टाइम्स x. x हमारे पास 2 टाइम्स आ गया, राइट? इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. 5 माइनस 2 इज 3. 3 इंटू 180 इज 540 degree. Now add these three angles. 120 plus 110, that is 230 plus 30, that is 260 degree plus x 2x. 540 degree as it is, 2x as it is. Up this 260 degree will shift to the other side of the equal. दूसरी साइड जाएगा. इक्वल के तो क्या हो जाएगा? इसका नेचर चेंज हो जाएगा. It will become of minus or goes with negative sign. Whenever you subtract 260 degree from 540 degree, answer will be 280 degree. So 2x is equal to 280 degree. यहाँ पे 2x है. अगर हम x एक साइड में कर ले तो 280 divided by 2 हो जाएगा ना, बिकॉज ये 2 इस साइड में मल्टीप्लाई में है. इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा. Whenever you divide it, then answer will be the 140 degree. So our answer is 140 degree. Yes friends, now come to the part D. In part D again we have a pentagon with the 5 side figures. So sum of all angles of पेंटागन. अभी हमने कैलकुलेट किया तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है. सो राइट कर देंगे 540 डिग्री. सम कर देना एंगल्स का. सो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x. 5 टाइम्स x ही तो है हमारे पास, तो हमने 5 टाइम्स x राइट कर दिया. दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री. x प्लस x प्लस x प्लस x कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 टाइम्स x को ऐड कर देते हैं. दैट इज 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 540 डिग्री. अब एक साइड में जो 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है वो दूसरी साइड में जाएगा तो
डिवाइड हो जाएगा। whenever you divide 540 degree by 5, then answer will be 180 degree, right? I think it's clear to all of you. So when you divide 540 degree by 5, then answer will be 108. Yes students, now come to the question number 7. In the question number 7, a figure is shown to you and we have to find sum of the angles x, y and z. Firstly, we have to calculate the angle x, y and z, and then we will start adding these angles. So write the solution. Here z and 30, both angles are making a linear pair. So write angle z is equal to 180 degree minus 30 degree. So angle z is equal to 150 degree, right? Similarly, यहाँ पे बन के रहा है लीनियर पेयर. After that, angle 90 and x. Angle x is equal to 180 degree minus 90 degree because these are also forming linear pair. So angle x is equal to 180 minus 90 degree, that is 90 degree, right? So now, how we can calculate the angle y even when there is no value given for the angle? यहाँ पे हमारे पास लीनियर पेयर भी नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? अब we have another property. हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि sum of interior angles is equal to opposite exterior angle. So write angle y is equal to 30 degree plus 90 degree. ये प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो एंगल y is equal to 90 plus 30, that is 120 degree. Now what we have to calculate? X plus y plus z, राइट? x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 90 डिग्री प्लस y की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री प्लस z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? दैट इज 150 डिग्री. अब इनको ऐड कर देते हैं, राइट? सो 150 एंड 120, दैट इज 270 डिग्री. 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, द आंसर विल बी 200 so the answer will be 360 degree. In part B, we are again given a figure and we have to calculate w plus x plus y plus z. So here z is forming a linear pair. So write z is equal to 180 degree minus 60 degree and answer will be 120 degree. And similarly the angle y is equal to 180 degree minus 80 degree. So answer will be 100 degree. And again same linear pair. So x is equal to 180 degree minus 120 degree and answer will be 100 and so the answer will be 60 डिग्री. हमारे पास x भी कैलकुलेट हो गया, y भी, z भी, बट w नहीं कर पाए हम लोग, राइट? सो w कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हियर वी यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर. सो पहले तो इससे सेपरेट कर देते हैं हम लोग सम से. यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर, हमारे पास क्वाड्रेटर ही तो है, 1 2 3 4 साइड में, और
4 साइड्स वाली क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो वही यूज करेंगे, हमने एक्टिविटी भी की थी उसके रिगार्डिंग। सो लेट्स दिस विल द एंगल n, सो राइट n प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस फोर्थ एंगल इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ add all these values, 60 degree plus 120 degree, that is 180, 180 plus 80 degree, that is 260 degree. So write 260 degree is equal to 360 degree plus n. So n is equal to 360 degree minus 260 degree, that is equal to 100 डिग्री। हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई 100। अब हमारे पास अगर n की वैल्यू 100 आ गई तो हम w कैलकुलेट कर सकते हैं। सो राइट एंगल w इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस n। n कितना था? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, राइट। एंड जो आगे वाला पार्ट है क्वेश्चन का, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो है आगे वो हम इधर स्टार्ट करेंगे ऊपर से। सो क्या करना था अब हमने? एंगल W प्लस x प्लस y प्लस z कैलकुलेट करना था। सो कैलकुलेट करते हैं। W की वैल्यू 80 डिग्री, x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? 60 डिग्री प्लस y की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? 100 डिग्री प्लस z की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? दैट इज 120 डिग्री। अब सभी को ऐड कर देते हैं। 80 प्लस 60 दैट इज 140 डिग्री प्लस 100 240 डिग्री प्लस 120 डिग्री, एंड आंसर विल बी द 360 डिग्री। आई थिंक all the problems are clear to you. Our exercise is also complete today. Okay students, have a good day.